सब आंखें बंद हो जाए, सब अपने बातों को खुली और पूरा समाज की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आज इस खुदा से कलाम की बरकत को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, आज कलाम के मसा को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और उस खुदा से कहेंगे कि आज मैं काली बंधन की तरह तेरे घर में आई हूँ, तेरे घर में आया हुआ खुदा पाक खुदा, तू मुझे अपने कलाम से, अपने कलाम के गहरे भेदों से और अपने जनाज से खुदा पाक खुदा तू मुझे भर। और आज अपने कलाम के वसीला से तू मेरी जिंदगी को, मेरी सोच को खुदा पाक खुदा यीशु के नाम से बदल डाल। खुली तौर पर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जब मुझसे अपने हाथों को उठाता तो वो खुदा से पता बचता। और आज आप परेशान हैं, अपने हालातों पर, अपनी परेशानियों पर पता पाना चाहते हैं, तो मेरे चीजों अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठाए, ताकि वो खुदा आज के कलाम के वसीला से बंधन और छुए यीशु के नाम से तोड़ डाले। और आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए और हमारी फैमिलियों के लिए बाइस बरकत कलाम हो। और इसी तरह हम दुआ के साथ मिलकर दुआया हालत में पहुंच जाएंगे और अपने आप को कलाम खुदा के नाम से याद करेंगे। तेरी हज़ूरी का ज़ोर से बरसे, इस समय का मौसम करेंगे तेरी हज़ूरी का बादल, तेरी हज़ूरी का ज़ोर से बरसे, तेरे लहू से खुदा तेरे लहू से खुदा तेरे लहू से खुदा मोरे के दिल में जुड़े
बैठे सभी खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा की दी हुई तमाम बरकत के लिए और ख़ास तौर पर आज की इस मुक़द्दस सुबह के लिए खुदा ने फजल बख्शा है कि हम उसकी हज़ूरी में आकर उसके नाम को जलाल दे सकें। इस बात के लिए जोरदार ताली।
کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، شادمان ہوں اور ہمیشہ اپنے خداوند سے اپنی برکات جو ہے اس کو رسید کریں۔ اور کئی بار ہم ان تمام باتوں پر جب غور کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں۔ کتنے سمجھتے ہم کمزور ہیں؟ ہم کمزور نہیں ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ خدا کی قوت ہے۔ ہاللویا! خدا جو ہے وہ جنگ میں زور آور ہے، خدا جو ہے وہ فتح مند ہے، خدا جو ہے اپنے لوگوں کو قوت بخشتا ہے۔ اسی لیے داؤد بھی کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں تو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ خدا کا روح مجھ میں ہوتا ہے۔ ہاللویا! تو پھر ہم کمزور نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہیں، زور آور ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو قوت ہے، ہماری طاقت جو ہے وہ اسرائیل کے خدا کی طرف سے ہے اور وہ زندہ ہے۔ ہاللویا! تو آئے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالے ہجری پہلا باب اور اس کی 6 نمبر آیت جو ہے اس کو ہم تلاوت کریں گے۔ پہلا باب اور اس کی 3 سے 6 آیات تک کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ امام شمیل سے گزارش ہے وہ کھڑے ہو کر ان 3 آیات کو تلاوت کریں۔ 3 سے 6 آیات ہم قرآن مقدس کا کلام سے پڑھیں گے۔ یہ لکھا ہے، تب خداوند کا کلام نیچے نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مشرق گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے، اور رب آج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو، تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو اور پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سراغ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ آپ کے بڑے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہاں پر جب ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑی خوبصورت اور بڑی خوشائن بات ہے جو ہمیں کلام میں سے ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا۔ کیا کیا تم نے؟ بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا۔ اب جب اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سب حقیقت جو ہے اپنی زندگی میں سے نظر آتی ہے۔ ہم بہت محنت کرتے ہیں، ہم خوب دوڑ لگاتے ہیں، ہم 2 جگہ پر کام کرتے ہیں، ہم ایکسٹرا جاب کر کے روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اخراجات جو ہے وہ پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ہمارے گھروں میں روپے کی کمی نہیں ہے، روپیہ پیسہ آتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ جس طرح وہ آتا ہے اس طرح اڑ جاتا ہے اور اس سے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ ہم اکثر اس بات پر غور کرتے ہیں لیکن صرف غور کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیا خوب ہے کہ اگر ہم اس بات پر بھی عمل کریں کہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تم نے بہت گویا پر تھوڑا کاٹا، اور آگے ہم دیکھتے ہیں تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سراغ دار تھیلی کے اندر جمع کر رہا ہے۔ ہم اس سے بہت سارے ہیں جو 2-3 جگہ پر انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوا ہے، جگاڑ لگایا ہوا ہے تاکہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہمیں ملتا رہے۔ اور ملے کیوں؟ تاکہ ہم کیا ہو جائیں؟ خوشحال ہو جائیں، ہمارے بچے خوشحال ہو جائیں، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے اندر خوشی اور شادمانی ہو۔ لیکن کیا یہ روپے پیسے سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں، کیا اس روپے پیسے کے ساتھ ہم وہ برکتیں لے سکتے جو ابھی ہمارے ساتھ جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر خدا کو دولت کے ساتھ محبت ہوتی، خدا کو روپے پیسے کی غرض ہوتی، تو خدا کبھی بھی خدا کے کلام میں نہ آتا کہ لکھا ہوتا کہ میں اس لیے آیا ہوتا ہوں تاکہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ پھر لکھا تم 2 مالکوں کی خدمت
नहीं कर सकते। तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि दौलत, जब हम दौलत के पीछे भागते हैं तो हमारे अंदर लालच आता है। जब लालच आता है वो गुनाह को जन्म देता है। जब गुनाह बढ़ता है तो उसका स्वभाव और उसकी मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम पर तवक्कुल करते हैं, जब हम इस बात पर ईमान ले आते हैं कि हर एक चीज पर अगर कोई कादिर है तो वो हमारा खुदा है, जो इस्राएल का खुदा है, जो जिंदा है और वो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है, जिसने बलतुस की हुकूमत में दुख उठाया है, जो मर गया, दफन हुआ और सबसे ज्यादा कुदरत वाला है, वो जलाल और हशमत से महमूद खुदा है, और वो चाहता है कि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम दौड़ को लगा रहे हैं, हम इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं है। वो जैसे आता है उसी तरह उजड़ जाता है, और कहीं पर हमारे लिए खुशी और शादमानी नजर नहीं आ रही। जिसके पास है वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं वो भी रो रहा है, क्योंकि उसके अंदर बरकत नहीं, इसीलिए हम कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे। मेरे अजीजों, जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम अपना दिल जो है खुदा के साथ नहीं लगाएंगे, जब तक हमारा दिलो जान खुदा के साथ लगा हुआ नहीं होगा, ना तो हमारे अंदर ताकत होगी, ना हमारी कुव्वत है, और ना हम अपने आप से कुछ हासिल कर सकते। कलाम कहता तुम मुझसे जुदा होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो फिर मैं और आप कौन है जो अपने आप पर फख्र करते हैं? क्या हम कुछ बना सकते हैं? कुछ जब हम देखते हैं घर बन जाता है तो हम कहते हैं हमने बड़ी मेहनत की। ऐसे ही है, हमने बड़ी मेहनत की, हमने रात दिन एक करके इस मकान के लिए जो घर खुदा हमने बनाया है, इसके लिए पैसा इकट्ठा किया, फिर इस घर को तामीर किया, और अब खुदा का शुक्र है कि हम इस घर के अंदर रह रहे हैं। लेकिन कलाम हमें क्या सिखाता है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत ज़ाया, तो फिर हम कैसे घर बना सकते? अगर हम बनाते तो हम जितने बेघर हैं, क्या वो अपने घरों के अंदर नहीं रह सकते थे? लेकिन कलाम कहता है कि जब तक खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? अबस है। हम जो अगर अपने घरों के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि खुदा अपने लोगों के साथ है। उसने कहा जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तेरे नाम करूंगा। तो फिर कौन है आप? मुबारी के जो अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन जो हम हैं जो अपने घर में नहीं है, एक यानी कि जो खुदा ने हमें दिया है उसके अंदर नहीं रह रहे, तो फिर हमें उसके लिए सोचने की जरूरत है। क्यों हम पीछे हैं? क्यों हम कमजोर हैं? क्यों हमें वो जगह हमारे नाम नहीं हो रही जहां पर हम मौजूद है? क्योंकि हमारे अपने अंदर क्या है? कमियां हैं, हम कमजोर हैं, हम अपनी कुव्वत को इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम जो है जब तक अपने खुदा के आगे डटेंगे नहीं, उसके आगे झुकेंगे नहीं, उस वक्त तक हम बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, जब बच्चा रोता है तो वो अपने बाप के आगे क्या करता है? डट जाता है। तो जब वो डट जाता है तो बाप के पास कुछ भी ना हो, लेकिन बाप को हर चीज मुहैया करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, इसकी उम्मीद जो है वो मेरे साथ वाबस्ता है, वो उसकी हर जरूरत को पूरा करता है। तो क्या खुदा जिसे हम बाप कहकर पुकारते हैं, क्या हमें जरूरत नहीं कि जितना हम औरों के पीछे भागते हैं उतना हम उसके आगे झुक जाए? खुदा तू हमारी उम्मीद का है। आमीन। तो क्या जब हम उसके आगे झुक जाएंगे, डट जाएंगे, तो क्या वो हमें खाली हाथ वापस लौटाएगा? ऐसा नहीं है। हम किसी के ऊपर उम्मीद न रखें, हम किसी के ऊपर तवक्कुल न करें, सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखें उस खुदा पर जो हर चीज को मुहैया करने में कादिर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कहता है तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम पहनते हो गर्म नहीं होते। मेरे अजीजों, लेकिन कलाम जब हमारे साथ होगा तो फिर कलाम कहता है जो थोड़े में वफादार है वो बहुत में भी वफादार होगा। हमें ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो कुछ है हम सिर्फ
करना शुरू कर दे तो मेरे अजीजों आपके लिए निजात के दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। फिर आप कमजोर नहीं रहेंगे, फिर आपके हाथ ऐसे नहीं होंगे, आप ऐसे हाथों से तकसीम करने वाले होंगे। आमीन। मेरे अजीजों, जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, जब तक हम अपने आप को खुदा के आगे झुका नहीं देते, उस वक्त तक हमारे लिए बरकत नहीं है। झुका हुआ दरख्त हमेशा क्या करता है? ज्यादा फल लेकर आता है। जो झुका हुआ दरख्त है वो क्या करता है? ज्यादा फल लाता है। लेकिन जो सीधा होता है उसका अंजाम क्या है? काट दिया जाना, आग में डालना और फिर उसका कुछ भी नामो निशान नहीं रहता। जब तक हम झुकेंगे नहीं, जब तक हम खुदा के आगे लड़खड़ाएंगे नहीं, उस वक्त तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। मांगो तो तुम्हें अपनी साथ बात उसके साथ में आपने लिखा, मांगो तो तुम्हें और ढूंढोगे तो क्या करोगे, और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ हमें ये सिखा रहा है कि तुम में से कौन सा ऐसा बाप है कि अगर उसका बेटा उससे मछली मांगे उससे सांप दे, या उससे रोटी मांगे तो उसके एवज उसे पत्थर दे। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो कलामे खुदा में लिखा है तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूह कुद्दस क्यों ना देगा। हालेलुया। हमें क्या की जरूरत है? खुदा के पाक रूह से भरने की जरूरत है। जब तक रूह हमारे अंदर नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, रूह नाम में ना मिल जाए, तुम यहीं पर ठहरे रहना। लेकिन जब उन्हें कुव्वत का लिबास मिल गया तो फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जाकर शहर शहर गली गली मुनादी करो। हालेलुया। आज हम खुदा की आवाज को सुनते नहीं लेकिन निकलते हैं, इसलिए हम गिर जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। लेकिन अगर हम कलाम के ताबे हो जाएंगे तो कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। और अब क्या लिखा है? अब रब पाक यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो। अब ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? खुदा का कलाम। और रब पाक फरमा रहा है कि तुम अपनी रवश पर क्या करो? गौर करो। इसका मतलब हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। हम दूसरे पर निगाह करते हैं, दूसरे की अर्जई करते हैं। अगर हमारा भाई या हमारी बहन जो है, अगर उसे खुदा भाई से बरकत करता है तो हम कहते हैं कि ये इसकी तो इतनी औकात नहीं है, तो ये कहां से पैसा रुपया ले आई जो इसके पास अच्छा घर बन गया या गाड़ी खरीद ली या उसके बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हम इस पर क्या हो जाते हैं? गुनाह की साथ में आ जाते हैं। हमें क्या करना है? अपने इर्द गिर्द पर, अपने बहनों भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए अपनी मान मोहब्बत रखनी है, ताकि जब वो बरकत पाए हम खुश हो तो उसके वसीले हम भी बरकत पाए। हालेलुया। लेकिन जब हमारे अंदर जेलसपन आता है, जब हम किसी के बरकत लेने से हम जेलस करते हैं तो जो कुछ हमारे पास होता वो भी ले लिया जाता है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह दुनिया में आए, उन्होंने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि क्या हुआ? वो इंसानों के मुशाबह हो गए। उन्होंने लान तान को बर्दाश्त किया। उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए अपनी कीमती जान देने तक दरेर ना किया। वो सलीब पर चढ़ गए, वो मर गए, वो दफन हुए और तीसरे दिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो है हम क्या पाते हैं? जिंदगी पाते हैं। हमारे अंदर जो जिंदगी का दम है ये यीशु मसीह के उस मार खाने के सबब से, लहू बहाने के सबब से है। और आज ये जिंदगी हमें इसी तरह बड़ी आसानी से नहीं मिली, बल्कि ये बड़ी कुर्बानियां इसकी अदा करनी पड़ी। और आज भी देखे, आज भी इस कलाम को जो है वो कुर्बानी देनी पड़ रही है। हालेलुया। अभी हमने फैसलाबाद में देखा कितना सैकड़ों के हिसाब से ये खुदा का कलाम जो इसको जलाया गया, लेकिन ये जितना जलता उतना ज्यादा जिंदगी तब्दील करता। हालेलुया। इसको दबाने वाले, इसको जलाने वाले जो है वो इस सफाई हस्ती से मिट गए, लेकिन ये कलाम फैलता गया। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है? अपने खुदा के जलाल के लिए खड़े होना है। और जब तक हमारे अपने अंदर ईमान की कुव्वत ना होगी, उस वक्त तक हम शरीर का मुकाबला नहीं कर सकते।
हमें मजबूत इरादे के साथ, इस ईमान के साथ कि हमारे खुदा में यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी है। इसीलिए कलाम खुदा में भी लिखा है कि दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब। इस दुनिया में अगर यीशु मसीह को इज्जत दी होती तो शायद आज हमारी भी इज्जत होती, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को रुसवा किया, उन पर जुल्म सितम किए। तो जिन्होंने हरे दरख्त के साथ किया तो वो सूखे के साथ क्या कुछ कर सकते। लेकिन हमें इसके लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार रखना है, तैयार करना है। ये हमारे लिए, उनके लिए फख्र की बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए फख्र की बात है, क्योंकि अगर हम मसीह में होकर दुख उठा रहे हैं तो कलाम कहता है तुम्हारे लिए फख्र की बात है। हालेलुया। लेकिन अगर हम मसीह से हटकर दुख उठा रहे हैं तो फिर हमें सोचने की बात है कि हम क्यों दुख उठा रहे हैं। मेरे अजीजों, कलाम के वसीले जब भी कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो ये कलाम हमें निकलने की राह बताता। हालेलुया। ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। तो इसी कलाम की वजह हमें क्या करना है? खुदावन से बरकत को लेना है। जब तक हम इस कलाम के ताबिया नहीं होंगे उस वक्त तक हम खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। हम लाखों करोड़ों कमा लें, लेकिन कलाम कहता है कि मजदूर अपनी मजदूरी सुरागदार थैली के अंदर जमा कर रहे हैं। तो जो अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर आज से मेरे अजीजों आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद छुटे खुदा के आगे, रात के उन पैरों में जिनमें खुदा मिल सकता है, आप दरख्वास्त करें उस खुदा के आगे, आप उसके आगे झुक जाए, आंसुओं के साथ रोएं। कलाम खुदा में लिखा है जो आंसुओं से बोलते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया। अपने आंसू खुदा के आगे जारी करें, अपनी कौम की बेटियों के लिए, बेटों के लिए, अपने पासवानों के लिए, अपने घराने के लिए, और उससे मांगना शुरू करें तो वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आए हम चंद मिनट के लिए अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाकर अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे चंद मिनट के लिए कि अगर हमारे पास मालो दौलत है, अगर हमारे पास पहनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ है, लेकिन हम उसमें से बरकत ले नहीं रहे, वो हमारे लिए एक देखने की हद तक है, तो फिर खुदा से आज मांगना शुरू करें। हिकमत और रूह, हिकमत की रूह को मांगे। खुदा से कहें खुदा हम कमजोर हैं, लेकिन तू हमारा जोर है, तू हमारा फकर है, तू हमें छुड़ाने वाला है, तू हमें बचाने वाला है, तू हमें बहाल करने वाला है। देख खुदा आज इस कलाम केवल हम अपनी जिंदगियां तेरी हजूरी में रखते हैं कि खुदा तू हमें गौर करने का फजल दे, ताकि आज के बाद हम अपनी जिंदगियों पर गौर करने वाले बने। जहां हम कमजोर हैं हम अपनी कमजोरियों को अपने सामने रखें, जाके हम किसी और की तरफ उंगली उठाएं, बल्कि हम अपनी उंगली जो है अपनी तरफ रखकर अपनी जिंदगियों पर गौर करें और जाने कि हम कितने कमजोर हैं। खुदावंद आज अपनी कमजोरियों को हम तेरे सामने रखने वाले बन जाए। उस खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए इस कीमती मौका के लिए जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कीमती खून बहाया है, जो उसका लहू मेरी और आपकी निजात के लिए बह गया। उस खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। हमें से गुजारिश है वो दुआ में रहनुमाई करे, कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ और शायर वानी की मीटिंग के लिए, ताकि जो लोग उसमें शामिल हो वो खुदा के खून और उसके गोश्त में और उस नए अहद के अंदर शामिल हो और उनकी जिंदगियां तब्दील हो। प्रेज़ हालेलुया। के बादशाह मेहरबान से खाली फरमाए, जिंदगी के बेहतर सौदे हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के जिंदा मौसर और पाक कलाम के लिए, जो दोनों तेज तलवार से ज्यादा तेज है, जो हमें काटता, हमें चाटता, हमारी दुरुस्त भी करता और हमारी नक्शों को बहाल करता है। गुलाम मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तेरा अपने जिंदा कलाम को नाज़िल किया है और अपने कलाम की आवाज़ को जो पाक है अपने कादम के वसीला से हमारी जिंदगी तक पहुँचाया है। मिन्नत करती हूँ खुदा ये कलाम जो हमारी जिंदगी तक पहुँचा है ये फलदार हो, और खुदा हम तेरे कलाम पर अमल करें और अपनी जिंदगी पर गौर करें मेरे खुदा, और हम जाने कि तू हमें क्या फरमाता है मेरे खुदा, और हम तेरे हुक्मों को
मानते हुए तेरे कलाम की तरफ रागी होते जाएं और तेरा कलाम हमारी दुरुस्तगी करता है मेरे खुदा, और हम निर्जोगी और राज्योगी तरक्की करें और हम रूह में बहाल होते जाएं मेरे खुदा। आज जब खुदा हम तेरे पुनर्गोश में शामिल होने वाले हैं और खुदा मैं मिन्नत करती हूँ कि मैं फजल दे कि हम इस बात को जाने कि तेरा खून हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहा दिया गया और तेरा खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आज जब तेरे पुनर्गोश में लोग शामिल होते हैं तो खुदा उन जिंदगियों को अभी से छोड़ बहाल कर और उनकी जिंदगी के अंदर इस बात को जता दे जब बगैर मुनासिब तौर पर इसको ना ले, बल्कि खुदा हम जाने कि तेरा खून हमारे लिए बहुत कीमती है और हमारी जिंदगियों को बहाल करता है। आज तेरा लोगों में आजाद करे, हमें बढ़ाए और बरकत बख्शे ताकि हम तुझ में तेरे नाम में तेरे जलाल में तेरी मोहब्बत में तेरी रिफाकत और तेरे तूफान में बढ़कर तरक्की करते जाएं ताकि जलाल यीशु नाम को मिले और बेदीनी के बढ़ते हुए दौर में खुदा हम तुझसे लिपटे रहें, क्योंकि हमने नहीं बल्कि तूने हमें चुन लिया है, तूने हमें अलग कर लिया है और तूने हमें बरकत दी है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हम सबों को नाम पे नाम बरकत देना यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन।